السلام علیکم۔ حضرت مریم علیہ السلام کا کچھ بیان ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کمنٹ کریں۔ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ پھل کھاؤں، کیا تم میرے لیے کچھ پھل لا سکتے ہو؟ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ویران ریگستان میں ایک چھوٹے سے جھوپڑی میں رہتے تھے۔ ماں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھل لانے کے لیے نکل پڑے اور حضرت مریم علیہ السلام اکیلی اس جھوپڑی میں رہ گئی۔ اسی دوران ملاک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان کا خوفناک روپ دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئی اور گھبراتے ہوئے فرمایا، آپ کون ہیں اور کس مقصد سے یہاں آئے ہیں؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں عزرائیل ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ دنیا میں آپ کی مہلت پوری ہو چکی ہے، اب آپ کو آخرت کے سفر کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی بات سن کر حضرت مریم علیہ السلام غمگین چہرے کے ساتھ عرض کرنے لگی، اے ملاک الموت، مجھے کچھ وقت کی مہلت دے دیجیے۔ میں نے اپنے جان سے بھی عزیز بیٹے کو پھل لانے کے لیے بھیجا ہے، وہ کچھ ہی دیر میں واپس آ جائے گا۔ میں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بس ایک بار اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اسے الوداع کہنا چاہتی ہوں اور جاتے جاتے اسے کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ واپس آ جائے پھر آپ میرا جان قبض کر لیجیے۔ ملاک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے عیسیٰ کی والدہ، میرے اس کام میں ایک لمحے کی بھی دیر کرنے کا اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر جان کے لیے موت کا ایک مقرر وقت طے کر دیا ہے۔ ہر شخص کو اسی وقت پر اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، نہ میں اسے آگے بڑھا سکتا ہوں اور نہ ہی ٹال سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مجھے ابھی اور اسی وقت آپ کا جان قبض کرنا ہوگا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی بات سن کر حضرت مریم علیہ السلام بول اٹھی، میں موت سے نہیں ڈرتی اور نہ ہی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والی ہوں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ میں آخری وقت میں اپنے بیٹے سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی اور اسے ایک بار دیکھ بھی نہ سکی۔ خیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اپنی روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملاک الموت نے اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی اور ان کی زندگی کا سفر ختم ہو گیا۔ ان کا پاک جسم جھوپڑی میں سکون کے ساتھ پڑا رہ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے پھل لے کر لوٹے۔ جب انہوں نے اپنی والدہ کو چپ چاپ لیٹا ہوا دیکھا تو یہ سمجھے کہ وہ آرام کر رہی ہیں، لہٰذا انہوں نے انہیں پریشان نہیں کیا، مگر جب کافی دیر تک کوئی حرکت نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی والدہ کو ہلایا۔ تبھی دیکھا کہ ان کی پاک روح جسم کو چھوڑ کر اس فانی دنیا سے جا چکی ہے۔ اپنی ماں کی اچانک وفات دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شدید بے چینی اور غم میں ڈوب گئے۔ وہ اپنی ماں کے دکھ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کی درد بھری سسکیوں سے ماحول غمگین ہو گیا، یہاں تک کہ پرندے اور جانور بھی ان کے اس غم میں بے چین ہو اٹھے۔ کچھ دیر غم میں ڈوبے رہنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب اپنی والدہ کا جنازہ اور دفن کا انتظام کرنا چاہیے، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں دور دور تک کوئی انسان موجود نہ تھا، لہٰذا وہ اپنی ماں کے دفن کے لیے کسی کی مدد تلاش کرنے نکلے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ان کی ملاقات کچھ لوگوں سے ہوئی جو ان کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنی والدہ کے انتقال کی خبر دی اور عرض کیا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا آپ انہیں دفنانے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، ہم دراصل انسان نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ہم جنت سے آئے ہیں تاکہ آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی جنازہ اور دفن میں شریک ہو سکے۔ ہم ان کے کفن، خوشبودار عطر اور دفن کے سارے ضروری سامان ساتھ لائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے اپنی والدہ کی جنازہ اور دفن کی تقریب پوری کی۔ اپنی ماں کے انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس واپس لوٹ آئے۔ وہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی شریعت اور انجیل مقدس عطا کی اور حکم دیا، اے عیسیٰ، اب تم اس نئی شریعت اور کتاب کے مطابق لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہو۔ اللہ کے اس حکم کے مطابق ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑے سے محفل میں خطاب کیا اور فرمایا، اے اللہ کے بندوں، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی شریعت اور نئی کتاب نازل ہوئی ہے، لہٰذا اب تم پہلے کے اصول کو چھوڑ کر اس نئی کتاب کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا وعدہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
अलैहिस्सलाम की यह बात सुनते ही यहूदी और बनी इसराइल के लोग शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने गुस्से से कहा, अब तक हम तुम्हें एक नेक और सच्चा इंसान समझते थे, मगर अब तुम हमारे पूर्वजों के दिन को तबाह करने की साजिश कर रहे हो। तुमने खुद एक नई शरीयत गढ़ ली और अब उसे हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन याद रखो, हम तुम्हारी इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुमने अपनी यह तहरीक बंद नहीं की तो हम मजबूर होकर तुम्हें कत्ल कर देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके इल्जामात और धमकी का जवाब देते हुए फरमाया, तुम लोग मुझे कत्ल करने की धमकी दे रहे हो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं अल्लाह का एक नबी हूँ और नबी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को हक की रस्ते पर बुलाऊं। यह अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं तुम्हें सच्चे दीन की तरफ दावत दूं। मैं तुम्हें तहे दिल से इस दीन को कबूल करने की दावत देता हूँ, वरना याद रखो, अगर तुम हक से मुंह मोड़ते हो तो तुम पर भी वही अजाब नाजिल होगा जो इससे पहले गुनहगार कौमों पर आ चुका है। जैसे ही नबी की नई शरीयत की बात फैली, बनी इसराइल में अलग अलग तरह की बहस और गुफ्तगू शुरू हो गई। कुछ लोग बगावत में उतर आए तो कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने के सबूत में कई चमत्कार पेश किए, जिनमें से कुछ सबसे मशहूर थे, जैसे कि मुर्दों को जिंदा कर देना, पैदाइशी अंधों को रोशनी बख्शना, कोढ़ के मरीजों को शिफा देना, मिट्टी के परिंदे बनाकर उन्हें अल्लाह के हुक्म से जानदार बना देना। इन चमत्कारों को देखकर बेशुमार लोग हिदायत की राह पर आ गए, मगर जो बदनसीब और जिद्दी थे वे इस सब के बावजूद नबी की बगावत में ही लगे रहे। जब नबी के दुश्मन बनी इसराइल के नाफरमान लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश रची तो उनके मानने वाले मोमिन बनी इसराइली उनसे मुखातिब हुए और कहा, तुम लोगों ने इससे पहले हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करना चाहते हो। ये तुम्हारी कौम के लिए एक खतरनाक और संगीन हरकत है। इस साजिश से बाज आ जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह के एक खास नबी हैं। उन्होंने तुम्हें जो मोअजिज़ात दिखाए वे उनके नबी होने के लिए काफी सबूत हैं। तुम हक को कबूल करो और इस जुल्म से तौबा कर लो। इसी तरह एक और दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बड़े से महफिल में तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए शनिवार का दिन इबादत के लिए मुकर्रर किया था और मुझे हुक्म दिया है कि मेरी उम्मत के लिए रविवार को इबादत का दिन मुकर्रर किया जाए। इसलिए इस दिन तमाम दुनियावी काम, कारोबार और व्यापार को छोड़कर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। इस दिन अल्लाह की किताब की तिलावत करो, लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराइयों से रोकने की कोशिश करो। दुनियावी कामों में मसरूफ होकर इस दिन को जाया मत करो, वरना अल्लाह ताला की नाराजगी का शिकार हो सकते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, ऐ बनी इसराइल के लोगों, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर जो किताब नाजिल की है, मैं उसकी तालीमात को कायम करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन याद रखो, मेरे बाद एक और अजीम नबी तशरीफ लाने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा। वह नबी इस जहान के सबसे अफजल और आखिरी नबी होंगे। अगर तुम में से कोई उनकी जिंदगी में उन्हें पाले तो फौरन उनकी तालीमात को कबूल करे और उनके दीन और शरीयत को अपनाए। ऐसा करने वाला शख्स अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रब और बुजुर्ग शख्स होगा। उन नबी पर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुबारक और मुकद्दस किताब नाजिल होगी जिसका नाम अल कुरान होगा। जो कोई उस किताब की तिलावत करेगा और उसके अहकामात के मुताबिक अमल करेगा, वह अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल और बेहिसाब सवाब पाने वाला होगा। तुम सब उस नबी मुकर्रम पर दिल की गहराइयों से द्रूद व सलाम भेजते रहो, क्योंकि वह नबी हैं जिन पर खुद अल्लाह ताला और उसके तमाम फरिश्ते द्रूद भेजते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, वह मुबारक नबी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब और महबूब हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपना खलील करार दिया है। अगर अल्लाह ताला उन्हें पैदा ना फरमाते तो ना ये आसमान, ना ये जमीन, ना ही यह जहान होता। तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी शान और मर्तबा कितनी बुलंद है। मैं एक नबी होने के बावजूद यह आरजू रखता हूँ कि काश मुझे उनकी उम्मत में शामिल होने की नेमत हासिल होती। अगर अल्लाह ताला मेरी यह दुआ कबूल कर ले तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों को सुनकर नाफरमान बनी इसराइल के लोग आपस में कहने लगे, ये तो देखो, ये शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को तोड़कर अपनी नई शरीयत कायम करने की कोशिश कर रहा है। यह तो एक साजिश है जिससे यह सियासी ताकत अपने हाथ में लेना चाहता है। इसके अलावा ये एक नए और सबसे अजीम नबी के आने की बात कर रहा है जिससे हमारी कौम उस नए नबी की तरफ मुतवज्जह हो जाए। हमें इसकी चालाकी और मकसद का अंदाजा हो चुका है। अब देर करने का कोई फायदा नहीं।
हमें फौरन बादशाह के पास जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए ताकि इसका इलाज किया जा सके। उस दौर में बैतुल मुकद्दस और पूरे यरूशलेम की हुकूमत बनी इसराइल के कंट्रोल में थी। उस वक्त का बादशाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों का दुश्मन था। जब बनी इसराइल के अंदर ये बड़ा इख्तिलाफ पैदा हुआ तो बादशाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को हमेशा के लिए मिटा देने का मंसूबा बना लिया। बादशाह ने एक खुफिया मीटिंग बुलाई और अपने दरबारियों से कहा, हमारे बुजुर्गों के दीन को मिटाने की साजिश करने वाला ये शख्स और उसके मानने वाले हमारे लिए बड़ा खतरा है। हमें इन्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। ये नबी और रसूलों के दुश्मन हैं, ये अल्लाह के दुश्मन हैं। इस काम में जो भी मदद चाहिए होगी तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इनका सफाया करना बड़ा सवाब का काम होगा। बादशाह के इन बातों से साफ जाहिर था कि वह किसी भी कीमत पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को कत्ल करना चाहता था। बादशाह की हिमायत के बाद तमाम बनी इसराइल एकजुट हो गए और फैसला किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके तमाम मानने वालों को दुनिया से मिटा दिया जाए। इसी साजिश के तहत उन्होंने नबी अकरम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। अगले ही दिन से वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे लग गए। हर वक्त उनका पीछा करने लगे और तरह तरह की चालें सोचने लगे। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले इस खतरे को महसूस कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने नबी की हिफाजत के लिए खुद को पहरे पर लगा दिया। जब बनी इसराइल ने देखा कि नबी के जानिसार हर वक्त उनके साथ रहते हैं तो उन्होंने नई चाल चली। उन्होंने सोचा कि चूंकि नबी के साथी बिना हथियार के होते हैं, इसीलिए पहले उन पर हमला करके कत्ल कर दिया जाए, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर दिया जाएगा। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ आईने सालूक नामक एक मकान में पहुंचे। जब बनी इसराइल को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने बड़ी तादाद में उस मकान को घेर लिया और पुख्ता इरादा कर लिया कि आज हर हाल में नबी अकरम को शहीद कर देंगे। इस नाजुक घड़ी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे नबी को उनके मकार दुश्मनों से बचाने का फैसला फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल जाओ और मेरे नबी को इज्जत व एहतराम के साथ आसमान पर उठा लाओ। अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन उस मकान की छत चीरते हुए अंदर दाखिल हुए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के नबी, आपके बारे में अल्लाह ताला का फैसला यह है कि आप अभी इसी वक्त मेरे साथ आसमान की तरफ चलें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आसमान पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। अल बिदाया व अन निहाया किताब में बयान किया गया है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सफेद बादल लाए और उस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बैठाकर आसमान की तरफ ले गए। वहां से उन्हें सीधा चौथे आसमान पर पहुंचाया गया, जहां उनके सुकून और आराम के लिए मुकर्रर जगह तय कर दी गई। दूसरी तरफ बनी इजराइल के लोग उस घर को घेर कर बैठे रहे। जब काफी वक्त बीत गया और किसी के बाहर आने का कोई नामो निशान न मिला तो उनका सरदार तलवार लेकर मकान के अंदर घुस गया। वह हर कमरे के कोने कोने तक छान मारने लगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं नहीं मिले। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। ऐसे में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के चेहरे पर फूंक मारी और फौरन उसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में बदल गया। जब वह घर से बाहर निकला तो बनी इजराइल ने उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर पकड़ लिया और बेहद जोर से मारना शुरू कर दिया। वह कुछ समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसी दौरान यहूदियों का सरदार चीखते हुए कहने लगा, भाइयों, यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हारा सरदार हूँ। मैं खुद हजरत ईसा को हर जगह ढूंढता फिरा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। तो क्या अब तुम मुझे ही मार डालोगे? यहूदियों ने उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और कहने लगे, अगर तू हमारा सरदार है तो बता ईसा कहाँ गया? अपनी जान बचाने के लिए अब कितने बहाने बनाएगा? तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में हम आने वाले नहीं। आज हम तुझे कत्ल करके ही दम लेंगे। उसे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि उसका चेहरा बदल चुका है और वह बिल्कुल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह दिखने लगा है। घबराहट में वह फिर चिल्लाने लगा, भाइयों, तुम लोग गलती कर रहे हो। मैं तुम्हारा सरदार हूँ जिसे कत्ल करने के लिए हम यहाँ आए थे। वह तो यहाँ है ही नहीं। मुझे लगता है वह कोई जादूगर है, लेकिन कौन सुनने वाला था। यहूदियों ने अपने सरदार को मार पीट कर बेहोशी के कगार पर पहुंचा दिया और फिर उसे सूली पर चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली। जब सरदार को यकीन हो गया कि अब उसकी मौत तय है तो वह चीख कर कहने लगा,
लगा, ए बनी इजराइल के लोगों, खुदा की कसम मैं तुम्हारा ही सरदार हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी शक्ल कैसे बदल गई। अगर तुम्हें मैं हजरत ईसा जैसा नजर आ रहा हूँ तो यकीनन यह अल्लाह रब्बुल अलमीन की कुदरत है। मुझे अब यकीन हो गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखने के लिए अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया है। जब यहूदी सरदार ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मान लिया तो बनी इजराइल के लोग और ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने बिना देर किए उसे फौरन सूली पर लटका दिया। सरदार चीख चीख कर कहने लगा, बचाओ बचाओ, मगर कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। आखिरकार उन्होंने उसे सूली पर चढ़ाकर उसकी जान ले ली। इस मंजर को देखने के लिए वहां भारी भीड़ जमा थी। जब सरदार की मौत हो गई तो लोगों में बहस छिड़ गई। कुछ कहने लगे, यह हजरत ईसा नहीं बल्कि हमारे सरदार थे। इस मंजर को देखने के लिए वहां भारी भीड़ जमा थी। जब सरदार की मौत हो गई तो लोगों में बहस छिड़ गई। कुछ कहने लगे, यह हजरत ईसा नहीं बल्कि हमारे सरदार थे, तो कुछ बोले, नहीं, हमने खुद हजरत ईसा को कत्ल किया है। यहूदी आपस में लड़ने लगे, तलवारें खींच गईं और उनमें फसाद शुरू हो गया। अधिकतर लोग हैरान परेशान हो गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हकीकत क्या है। यह सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का करिश्मा था। इसी हालात को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बहुत से लोगों ने उन पर ईमान ले आया। उन्होंने कलिमा पढ़ा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का अहद कर लिया। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अब कहाँ है? इस सवाल ने सबको परेशान कर दिया। लोग उनकी तलाश में इधर उधर भटकने लगे। कुछ लोग उनके खलीफाओं के पास पहुंचे और हकीकत जानना चाहिए। खलीफाओं ने बताया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को इज्जत के साथ चौथे आसमान पर उठा लिया है। हदीस शरीफ में बयान किया गया है कि कयामत से पहले एक ताकतवर काफिर आएगा जिसका नाम दज्जाल होगा। वो ऐसे हैरत अंगेज काम करेगा जो लोगों को धोखे में डाल देंगे। वो मरे हुए लोगों को जाहिरी तौर पर जिंदा कर दिखाएगा, आसमान से बारिश बरसाएगा, जमीन से फसलें उगवाएगा। ये सब देखकर बहुत से लोग ईमान खो बैठेंगे और उसे ही अल्लाह मान लेंगे। जब दज्जाल का फितना अपने आखिरी मकाम पर होगा तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा इस दुनिया में भेजेंगे। लेकिन इस बार वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। मुसलमानों के साथ मिलकर एक इस्लामी निजाम कायम करेंगे। इस दुनिया में अदल ओ इंसाफ का दौर आएगा। हदीस शरीफ में ये भी बयान किया गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में दोबारा तशरीफ लाने के बाद 40 साल तक जिंदा रहेंगे। इस दौरान वो इंसाफ और अमन का निजाम कायम करेंगे। फिर जब उनका इंतकाल होगा तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक के पास दफन किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस अहम वाक़ये से इबरत हासिल करने और अपनी जिंदगी में नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो